in the last class, we had discussed almost all of the circulatory system, whose main agent or operator, you can say, is the heart. And we studied about heart, we studied about blood, we studied about the veins, the arteries, the two exceptional veins and arteries, pulmonary artery and pulmonary vein. Then Rudra had put up a question as to which is the largest vein. So we came to know that it's inferior vena cava, and largest artery is the aorta. So we all studied about these things. Now today, yes, I am missing that one point, heartbeat. So to listen to the heartbeat, we have a device called stethoscope. So we have an activity, we had discussed about that also, how we can prepare it. I had tried to explain it to you with the help of a diagram. And there is also a table given over here wherein you can perform the activity and note down your observations. Now we will be moving forward with the topic. Yes. So it was about pulse rate and the observations about the heartbeat. This one, activity 11.2, and these were the readings that you had to note down. Okay, so do you find any relationship between heartbeat and pulse rate? Each heartbeat generates one pulse in the arteries, and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. So one beat of the heart circulates a pulse in all the arteries, and that is the thumb which we feel when we hold our wrist. And on the last class we had discussed about a few other points wherein we can feel that pulse. So now let's move forward from here. The rhythmic beating of various chambers of the heart maintains circulation of the blood and transport of substances to different parts of the body. Now, Bujo, as we all know, is a character in our book. He wonders if sponges and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen. Now, what are these sponges and hydra? ये है क्या? So let us see who knows the answer. Raise your hand to give me the answer. Sponge and hydra. Yes, Aditya. Sponges are sponge-like creatures live in water body. Okay, and what about hydra? Sir, hydra is a single-celled organism Single which cell. also lives in water. Okay, so it also lives in water. When I read hydra, I got reminded about the people, the group of goons in the movie Captain America. He was also battling against hydra. I don't think whether you all have seen the movie or not. But वहाँ पे भी हाइड्रा का नाम था. So don't confuse yourself with that. Hydra is an organism that lives in the water, as Aditya told us. Vivek, do you have a different answer? The hydra is single cell organism, and if we cut it in two pieces, we will get two hydra. Two hydra. Wow, that's wonderful. Can you name any character from our mythology or the stories that you have read who was able to do the same thing? Satyanarayana. Wait, raise your hand to answer. Sanidhya Oza. Yes, sir. हाँ. Sir, Hydra was a mythological creature who has 6 heads, and he was a dragon. If someone cuts his one head, it becomes 2 and regrow again.
So he was a mythological creature who was known as Dragon of Thunder also. Dragon of Thunder. So God of Thunder is Thor and Dragon of Thunder is Hydra. Yes. Okay. Mayank, do you have a different answer? Sir, it's mythological creature that I think in the Hindu Purans are sir, when any drop of the blood of his body drops on the ground, it develops one more Rakta Beej. Okay, yes. Rakta Beej. I remember that. So yes, similar things can also be found in our mythology and the stories that we read around us. But here we are concerned with Hydra. So Hydra, as told to us by some of the students, that if we cut Hydra into two parts, then two of them grow into singular hydras. Yes, so that's it. But बात यहाँ पे है कि इनमें blood तो होता नहीं है, so how do they live? ठीक है. So let's study about that. The water in which they live brings food and oxygen as it enters their bodies. The water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. ठीक है. अब ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है एंड ऑलमोस्ट ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव ब्लड. एंड जब हमने हाइड्रा और स्पॉन्ज को देखा तो इसमें क्या है कि ब्लड नहीं होता. जिस मीडियम में, जिस वाटर में ये रह रहे होते हैं, वही इनका वो काम कर देता है. ठीक है. सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ aquatic plants breathe or the circulation of food and blood happens. Anshika, don't talk to the person around you. Please concentrate. ठीक है. तो अब आगे हमें देखना है कि एक्सक्रीशन क्या है. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. सो आई होप सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लियर. किसी को कोई उसमें डाउट हो तो वो पूछ सकता है. He or she can raise his or her hand using the team's feature. 30 seconds. Go through it, turn the leaves of the book and see whether you have missed out a point or what. Anushka Singh. So what is pulse rate? Pulse rate. The number of times Yes. your heart beats in a given time duration. Like how many times does it beat in a minute? How many times does it beat in an hour? So in an hour it beats a very large number of times. So we consider it per minute. So normally the heartbeat of a healthy person is around 72 beats per minute, which means that our heart beats for 72 times in a minute. This number can vary. When you sleep, this number reduces, and when you are running or doing some activity, this number increases. Yashmit? Okay, sir. Thank you, sir. And vena cava are the largest vein and arteries. Yes, the inferior vena cava, as told by Ruth. Okay, sir. Satya? Yes, sir. Sir, what is a platelets? Platelets. So our blood has three Yes, parts. The red color is due to the red blood cells, and the red color is mainly due to the presence of hemoglobin. Then we have the white blood cells, which is the army of our blood, you can say, and it protects us from all the foreign bacteria, viruses and whatever enters our body, either through food or you can say water or any other effect. And then come the platelets. Now platelets have the task of, you can say, if there is a cut on our body, we all have seen blood coming out. So Yes, sir. the blood will keep on leaking if that cut is not covered. So our body has this, you can say, self-repairing system wherein it blocks that place from the inside.
So the blood platelets are the things that accumulate over there and helps the clotting of the blood. Wherein clotting is that phenomena, you can say, wherein that cut is blocked and it prevents the blood from flowing out. जैसे अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि वहां पे वो स्किन हार्ड हो जाती है, विच वी से पपड़ी पड़ गई, चोट सूख गई. सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दोज प्लेटलेट्स. So don't confuse this papdi with the papdi that we eat. Both are different things. You don't eat this one, the clot one. Okay, so shall we move on now? Vivek, I can see your hand raised. Vivek Kumar. ठीक है सर, उस एयर में सर ऑक्सीजन सर्कल से पूरे बॉडी से स्प्लिट करता है, तो फिर हम फील करना बंद कर देंगे तो बात भी शुरू होगी. विवेक, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियर. तुम्हारी आवाज बहुत कट के आ रही है. सर जब ब्रीथ करते हैं तो सर उसमें का उस एयर में का जो ऑक्सीजन होता है, हाँ. सर वही ऑक्सीजन हार्ट पूरे बॉडी करता है. हाँ. तो सर जब हम ब्रीथ करना स्टॉप कर देंगे सर हार्ट बीट रुक जाएगा. नहीं, हार्ट बीट एकदम नहीं रुकेगा. आप ऐसा समझो कि जैसे हमने जो भी एयर को ब्रीथ इन करा उसका पूरा पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन ब्लड नहीं सोख लेता या लंग्स हमारे ब्लड को नहीं दे देते. ठीक है. सो सपोज इफ वी इनहेल एंड स्टॉप आवर ब्रेथ, तो हमारे लंग्स में अभी भी हवा तो भरी ही हुई है. सो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन से यू कैन होल्ड योर ब्रेथ एंड द लंग्स आर एबल टू ट्रांसफर ऑक्सीजन टू द ब्लड. But as soon as the oxygen from it starts running out, you see you are not able to hold your breath for long. तो ये हो जाता है. इसको एक फिनोमेना से और चेक कर सकते हो कि एक तरीका तो हम लोग अपनी ब्रेथ होल्ड करते हैं when we inhale as much as we can and then we stop our breath. दूसरा होता है when we exhale all the air out and then we try to stop it. तो exhale करने में आप उतनी ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाओगे. But when you inhale it and then you try to hold your breath, तो ज्यादा देर तक हो जाएगा. Because when you exhale all the air out, there is no air left in the lungs which can supply oxygen to the blood. बात समझ आ रही है विवेक? Yes sir. सार्थक. Sir, I want to know why we cannot donate blood to other one whose blood group is other. So for example, A positive cannot give blood to A negative. So because why? Because why का आंसर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा समझ लो कि ब्लड इन एवरी इंडिविजुअल्स बॉडी हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ कोड, लॉक और की का. जैसे हर ताले से हर चाबी नहीं खुल सकती, तो कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन, ये नेचुरल कॉम्बिनेशन समझ लो. फॉर नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन द हायर क्लासेस, बट अभी फॉर नाउ ऐसा समझ लो कि हर जगह नहीं चल सकता. ए पॉजिटिव कैन गिव ब्लड टू ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव. O positive is a donor which can donate blood to everyone, but it can take blood only from O positive. ठीक है. तो ये सॉर्ट ऑफ एक कोडिंग समझ लो, तो अननेचुरल कोडिंग इन अ वे. ठीक है. इसमें RH फैक्टर है और ब्लड का तमाम चीजें हैं, बट लेट्स कीप इट फॉर द हायर क्लास. यशमित. Okay, sir, thank you. ए पॉजिटिव को बी पॉजिटिव अगर हम लोग देंगे ब्लड, तो फिर जो बी पॉजिटिव होगा उसका जो ब्लड होता है वो जम जाएगा. वो भी है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता. इट्स लाइक आप कहीं पे ऐसा समझ लो कि कहीं पे डॉलर चलता है, यू आर पेइंग हिम विद अ रूपी नोट, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता. ऑल्दो है ब्लड दोनों, उसकी करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, सब हो सकता है, बट एक तरह से वो एक्सेप्ट नहीं करता. तो कुछ उससे रिलेट कर लो. एग्जैक्टली ये नहीं है, बट
Again, that is a topic for a higher class, you can say. Amit Pal. Yes, sir. So why doctor always says avoid salt if you have high blood pressure? Why avoid salt? Yes, sir. If you have high blood pressure. Salt is the sodium from the salt is somewhat responsible for maintaining the blood pressure. It's a mineral. We know minerals help our body. So this sodium, you can say, in a way keeps the flow of the blood proper. Okay. Suppose when you are suffering from diarrhea or dehydration or dysentery, what happens is your body loses all the fluid and you start feeling weak. So in that case, you must have seen people who become very weak due to certain illness or dehydration. उन्हें ग्लूकोज चलाया जाता है. So that glucose is nothing but a mixture of you can say sugar and salt, but in a direct composition. ग्लूकोन-डी जैसे आपका होता है, वो डायरेक्टली ग्लूकोज होता है. आपको वो चीनी खा के भी मिल सकता है, बट ग्लूकोज इज इजियर टू अब्सॉर्ब. बॉडी के लिए थोड़ा आसान होता है और वीक स्टेट में बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे एनर्जी मिल जाती है. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्लूकोन-डी इज यूज फॉर नॉर्मल लॉस ऑफ एनर्जी एंड रिहाइड्रेशन. बट डिसेंट्री या डायरिया के केस में जब ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, आपको वॉमिटिंग हो गई है या लूज मोशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉल पिलाया जाता है. Now, if you all must have drank this electrol liquid or ORS liquid, वो थोड़ा salty ज्यादा होता है. तो उसमें क्या है, सॉल्ट जो पहुंचता है बॉडी में, उसमें सोडियम मिल जाता है बॉडी को, जिस वजह से ब्लड प्रेशर रिस्टोर हो जाता है. दैट हैपेंस व्हेन यू हैव लो ब्लड प्रेशर. हार्ट के पास उसको वो मिनरल नहीं मिल रहा होता है, जिससे वो उतनी पावर से ब्लड नहीं पंप कर पा रहा होता है. बट जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, उनकी बॉडी में नमक ज्यादा होता है. यू कैन से. और क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो जो नमक कंज्यूम कर रहे होते हैं, वी ऑल नो दैट मिनरल्स आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ अवर बॉडी थ्रू यूरिन एंड द स्टूल. ठीक है, तो उनके केस में बॉडी उस सॉल्ट को बाहर नहीं कर पा रहा होता, मे बी अ प्रॉब्लम इन द किडनीज और वट एवर, बट वो सॉल्ट उनकी बॉडी में रह जा रहा होता है. तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप एक्स्ट्रा सॉल्ट मत खाओ, क्योंकि ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा, हार्ट को ज्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे, सोडियम ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो सकता है, हार्ट इतनी तेज पंप कर सकता है कि हार्ट ही मैलफंक्शन कर जाए और आपको एक कार्डियक अरेस्ट मिल जाए. इन अ मतलब ब्रॉड में, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ ब्रॉड में. है इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी डीप, बट वो अगेन दैट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. ऐसा समझ लो. एक मोटे तौर पे ये समझो कि हाई ब्लड प्रेशर में सॉल्ट इसलिए मना करा जाता है क्योंकि बॉडी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई होता है. अब एकदम से भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट अगर खत्म हो जाएगा तो फिर उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. दोनों ही केसेस में हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो वो कंट्रोल्ड सॉल्ट इनटेक के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते. और आपने टीवी में ऐड देखा होगा, टाटा और बहुत से अब तो कंपनीज हो गई हैं जिसमें वो लो सोडियम सॉल्ट देते हैं. एक ग्रीन कलर के पैकेट में आता है टाटा का लो सोडियम सॉल्ट. तो उसमें वो कहते हैं जैसे कि एक शुगर फ्री आता है, मीठा होता है, बट आपका वो शुगर के जितना हार्म नहीं करता है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. तो इसी तरह से लो सोडियम सॉल्ट, उसमें सोडियम नहीं होता, मतलब सोडियम होता है बट नॉट इन दैट मच क्वांटिटी, तो इसलिए मना करते हैं. तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली अमित ये हुआ कि जिनको सॉल्ट मना करा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई. ठीक है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब देखते हैं एक्सक्रीशन क्या है. अब इन्होंने स्टार्ट करा कि रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ठीक है. ऑल्सो रिकॉल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन. ठीक है. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम. ठीक है. अब when our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste
प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो यहां से आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन मिल गई। दिख रहा है सबको हाईलाइटेड पोर्शन? यू ऑल कैन अंडरलाइन इट इन योर बुक। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एन या डिफाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई पूछ रहा है, तो आपको ये ऊपर वाला भी लिखना पड़ेगा, प्लस उसके बाद ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर कोई पार्ट पूछे तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ट भी हो जाएगा, सिर्फ हार्ट को नहीं रखेंगे, वेन्स भी रहेगा, ब्लड भी रहेगा, सब उसके पार्ट। जैसे अगर नर्वस सिस्टम की कोई बात करता है तो सिर्फ ब्रेन को नहीं रखते, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स सब आते हैं। इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर वो पार्ट जो एक्सक्रीशन को हेल्प कर रहा है वो किसका हिस्सा हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. अब ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो लंग्स में हो गया, बट बाकी चीजें कैसी होगी जो ब्लड में, और भी भाई सेल्स तो अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड को दे देती हैं। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ ब्लड टू क्लीन इटसेल्फ, remove those toxic byproducts and reach the cells again. तो अब इसके लिए ये जो बात लिखी इन्होंने, a mechanism to filter the blood is required, ये कैसे होता है? This is done by the blood capillaries in the kidneys. ठीक है, अब सबको पता है बॉडी में किडनी होती है, तो ब्लड एक बार किडनी में भी जाता है जहां पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood and the wastes dissolved in water are removed as urine. ठीक है, अब इसमें ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सके, तो यहां पे वो वेस्ट किडनी के अंदर एक तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो वेस्ट को तो आप यूरिन के फॉर्म में बाहर कर देते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरिनेटरी सिस्टम का एक तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये जो दो लोब्स हैं ये किडनीज के हैं, और आप ये साथ में देख सकते हैं क्या है, रेड और ब्लू कलर का क्या हो सकता है, वेन्स एंड आर्टरीज प्रोबेबली, या फिर ट्यूब्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। तो ये जो यूरेटर्स है इसमें क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का हिस्सा आपका ये हो गया। ठीक है, द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब अगर कोई बोले कि नेम सम पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। सो यू ऑल कैन अंडरलाइन दिस ऑल्सो इन योर बुक। ठीक है, एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। ठीक है, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। अब जो डिहाइड्रेशन हमें अक्सर समर्स में हो जाता है, बहुत देर तक हमने फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, पसीना ज्यादा निकल गया तो हमें वीकनेस सी लगने लगती है, तो उस केस में क्या होता है कि स्वेट के साथ साथ हमारी बॉडी का सॉल्ट भी निकल रहा होता है। अब जब सॉल्ट निकल रहा होता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होने लगता है, एंड व्हेन द ब्लड प्रेशर फॉल्स तो क्या होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, तो उसी के कारण हमें क्या फील होने लगता है, थकान। ठीक है, वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। तो इसीलिए आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी के ऐड में क्या बोलते हैं कि आप खेल रहे हो तो ग्लूकॉन डी सिप कर लो, तो उस समय आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि वंस द सॉल्ट दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द स्वेट, उस सॉल्ट को रिस्टोर करने के लिए आप ग्लूकॉन डी पी लेते हो। ग्लूकोज तो डायरेक्ट एनर्जी दे देता है एरोबिक रेस्पिरेशन और उसके हेल्प से, 36 या 38 एटीपी जो हम लोगों ने पढ़ रखा था। बाकी जो मिनरल शॉर्टेज होती है वो भी उसमें कुछ परसेंटेज में मिल जाती है, तो इससे आपकी बॉडी की एनर्जी क्या होती है, रिस्टोर हो जाती है।
ठीक है। अब Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. ये तो सबने ऑब्जर्व कर रखा होगा कि जब मई अप्रैल का टाइम होता है, जब हमें स्वेटिंग होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, या कह सकते हैं जुलाई अगस्त में भी जब हम स्कूल आते हैं, हमने खेला है, खेल के आए, तो हमें पसीना खूब हुआ, हमारी शर्ट भीग गई। एंड इट ऑल्सो ड्राइज, हम ये भी देखते हैं कि द शर्ट ड्राइज। तो जब वो सूखती है तो वहां पे एक व्हाइट सा मार्क रह जाता है। तो वो जो व्हाइट मार्क है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्वेट विच दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्ट दैट कम्स आउट विद स्वेट। ठीक है, पसीने के साथ जो बॉडी का सॉल्ट बाहर आ जा रहा है वो उसी कपड़े में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। अब डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? ठीक है, तो इन्होंने बोला कि स्वेट का काम खाली यही है कि कोई और भी काम। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट इज कूलर। अर्दन पॉट सबको पता है, घड़ा या मटका जिसे हम लोग कहते हैं, सुराही कहते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। अब देखो ये बात यहीं पे इतनी नहीं खत्म हो रही है। अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो कोई चीज ठंडी कैसे हो, ये बात है। तो आप इसको ऐसे समझो कि फॉर वाटर टू इवेपोरेट इट नीड्स टू हीट इटसेल्फ, उसे अपने आप को गर्म करना। हीट वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। ठीक है, अब जब हमें पसीना हुआ तो उस समय क्या है, पसीने की एक कोटिंग, स्वेट की एक कोटिंग हमारी बॉडी पे आ गई, मे बी ऑन आवर फेस, आवर नेक, आवर शोल्डर्स। तो अक्सर सबने ऑब्जर्व किया होगा कि उसी समय अगर आप फैन के नीचे बैठ जाओ तो आपको ठंडा लगने लगता है थोड़ा सा, यू फील रिलीफ। तो है क्या, हमारी बॉडी हीट हो रही है। एक तो बॉडी अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रही है। कब, जैसे इस समय ठंडियां हैं, हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। क्यों पहन रखे हैं? जिससे हमारी बॉडी की हीट बाहर न जाए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, हमारी बॉडी का ज्यादा है, तो हीट हमारी बॉडी से बाहर फ्लो कर जाएगी। इन समर व्हाट हैपेंस इज द ऑपोजिट। इन समर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज व्हाट, हायर कंपेयर टू आवर बॉडी। 42 डिग्री सेल्सियस हो गया, 45 हो गया, तो अब बाहर की हीट हमारी बॉडी में आने लगेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसको ठंडा रखने के लिए क्या करता है हमारी बॉडी, कि हमारी बॉडी स्वेट बाहर करती है। नाउ दिस स्वेट व्हेन इट डिपॉजिट्स ऑन आवर स्किन, तो अब ये हमारी बॉडी की हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करके ये इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब इसने हमारी बॉडी की हीट को सोख लिया तो अब हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्वेट। ये हमारी बॉडी को समर्स में ठंडा रखने के काम आता है। ठीक है, अदरवाइज हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे आप धूप में किसी चीज को रख दो, आप उसे छूते हो गर्मियों में जाके, तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, अक्सर सबने देखा होगा शाम को कि जब शाम होने लगती है गर्मियों में, तो आप अपने छत पे या घर के आसपास थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। स्पेशली अगर आपको रात को छत पे सोना है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप वो पानी डालते हो तो व्हाट हैपेंस इज वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। नाउ व्हेन इट ड्राइज अप व्हाट हैपेंस इज इट इवेपोरेट्स। तो उस इवेपोरेशन के प्रोसेस में वो छत की गर्मी को अपने साथ क्या करता है, सोख लेता है और अब्सॉर्ब करके उसे वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दो अलग अलग चीजें। जब 100 डिग्री के ऊपर पानी वेपर स्टेट में जा रहा है, दैट इज वेपोराइजेशन। एंड जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी वेपर स्टेट में जा रहा है तो वो इवेपोरेशन। ठीक है, तो बात हमें जो यहाँ समझनी है कि जैसे छत ठंडी कर देता है इवेपोरेट करता हुआ पानी, वैसे ही स्वेट भी क्या है, वो है तो वाटर ही। तो जैसे ही वो वाटर हमारी बॉडी के ऊपर से इवेपोरेट होगा तो वो हमारी बॉडी को कूल डाउन कर देगा। तो स्वेट का अब यहाँ पे क्या काम हो गया कि वो सॉल्ट्स को भी बाहर कर देता है और आपका बॉडी को भी ठंडा रखता है। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर का अमित ने क्वेश्चन पूछा था, तो जिसको भी हाई बीपी होता है आप देखोगे उसे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसे पसीना हो जाएगा, उसकी सांस थोड़ी सी ज्यादा फूलती है, उसके हमेशा आप माथे पे और हेयर लाइन के पास आप देखोगे कि हमेशा स्वेट रहता है। तो डॉक्टर कभी कभी ये भी ऑब्जर्व करता है कि इसकी स्वेटिंग हो कहां से। अगर पूरी बॉडी में इवनली हो रही है तब तो ठीक है कि अंडर आर्म्स से भी स्वेट है, शोल्डर्स पे भी स्वेट है, चेस्ट पे भी है, बैक पे भी है, कभी कभी लेग्स में भी हो जाता है हम जब ज्यादा खेल लेते हैं तो। ठीक है, और अगर सिर्फ इसके फोरहेड यानी माथे के आसपास पे ज्यादा पसीना होगा,
ब्रेन के हिस्से में ज्यादा पसीना हो, तब ये इन्फर करते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। यस अर्पिता, आई कैन सी योर हैंड इज रेज्ड। Some people fall, उन्हें चक्कर आ जाता है, तो सर why that reason क्यों उन्हें चक्कर आ जाता है? क्योंकि इतनी भी भूख नहीं रहती कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते और चक्कर आ जाता है, because of dehydration it's react like that. हाँ, उसका मेन रीजन वही है। इज शिवानी ऑनलाइन? शिवानी अटेंडिंग द क्लास? शिवानी चतुर्वेदी, शिवानी, कैन यू हियर मी? सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, पहला स्टूडेंट जो हम लोगों के स्कूल की असेंबली में फेंट हुआ था, इट वॉज शिवानी। तो प्रॉब्लम उसके साथ उस समय वही हुई थी, बॉडी में उसके सॉल्ट क्या था, एक तो उसने कुछ खाया नहीं था, तो जो बॉडी का रेगुलर सॉल्ट रहा होगा वो क्या हो गया होगा, सुबह आपके एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बॉडी के बाहर चला गया। नाउ व्हेन यू ईट मोर फूड, तो बाहर से आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिल जाता है। तो अब उसने सुबह कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से उसकी बॉडी में ऑलरेडी सॉल्ट की कमी थी। अब जब असेंबली में आई, स्कूल आई, शी कैरीड हर बैग, तो क्या हो गया, स्वेटिंग हो गई, तो जिसमें जो बॉडी का एसेंशियल सॉल्ट था उसका भी लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली ब्लड के प्रेशर में कमी आ गई। नाउ व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप, तो ब्लड जो है ब्रेन तक अगर नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और वहां पे भी एक ब्रेन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो उसके साथ वही हो गया, जब ब्रेन आपका थोड़ा सा काम करना कम करता है, उसी समय आपको बेहोशी या डिजीनेस का एहसास होता है। सो दैट इज समथिंग दैट माइट हैव हैपेंड विद शिवानी अर्पिता, यू आर राइट, सॉल्ट की ही कमी से ऐसा होता है, डिहाइड्रेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, तन्मय, आई कैन सी योर हैंड इज रेज्ड। सर मैंने देखा सर कुछ लोगों के हैंड में भी सर स्वेटिंग होती है, सर वो कैसे होती है? अगर हेड में जो स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग कहीं भी होती है तो मेनली बिकॉज दैट पोर्शन इज हीटिंग अप। ठीक है, अब ये समझो कि अक्सर आपने देखा होगा, या इसको बात के लिए रखते हैं, दैट इज समथिंग फॉर हायर क्लासेस। ऐसा समझो कि ब्लड ज्यादा पहुंच रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर के केस में, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका ब्रेन का एरिया जो है वो हीट अप हो जाता है, एंड अगेन टू कूल योर हेड आपको स्वेटिंग हो जाता है। अभी मोटी मोटा तन्मय आप कितना समझ लो? सर कुछ लोग हैंड में भी सर होता है वो स्वेटिंग। हैंड में भी हाँ है, वो चीजें भी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो हैंड जो आप बोले वो उनके स्किन टाइप के कारण होता है। जिसके बहुत सॉफ्ट हैंड्स होते हैं वहां पे है, क्योंकि स्वेट हमेशा किससे होगा, पोर्स से होगा भाई, होल्स होंगे, पोर्स होंगे, तभी स्वेटिंग होगी। तो जिसका हैंड आप देखोगे कि बहुत स्वेटी सा रहता है, स्वेटी पाम रहता है, उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट सी होगी। दुर्गेश, ओके सर। डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि सर उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है? वैसे तो उनके पास एक डिवाइस होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, बट वो देख के डॉक्टर को, जैसे हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी कोविड चल रहा है, सो कोविड में भी फीवर होगा और एक नॉर्मल फीवर भी होगा, ठीक है। तो फीवर सब में, बट कोविड के कुछ एक स्पेशल सिम्टम होंगे या लक्षण होंगे जिससे कि डॉक्टर ये गेस करेगा कि आपको कोविड है कि नहीं है, वो गेस करेगा पहले, फिर उसके बाद वो टेस्ट लिखता है। देखो डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब्स अ टेस्ट कि आप ये टेस्ट करा के लो टू मेक श्योर दैट हिज ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। तो वो डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आया है, उसके अंदर ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो ये हो सकता है, एंड टू मेक श्योर वेदर दैट इज द केस और नॉट, वो टेस्ट कराता है। ब्लड का टेस्ट करा देगा, यूरिन का करा देगा, चेस्ट का एक्सरे करा देगा। अभी लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था तो आपने सुना होगा कि चेस्ट के सीटी स्कैन के लिए लोगों को कहा जा रहा था। तो बहुत लोगों का ऐसा हो रहा था कि सीटी स्कैन या एक्सरे में आ जा रहा था कि हाँ ये कोविड है, बट उनके टेस्ट में नहीं आ रहा था कि वो कोविड पॉजिटिव है। तो ये अलग अलग मेथड्स है टू फाइंड आउट। और वो कैसे पता करेगा, वो चेस्ट कंजेशन, अगर मरीज बोलेगा कि सांस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हमें थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, जैसे हम लोग जिसको अपने भाषा में कहते हैं कि छाती मेरी जकड़ गई है, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है,
तो डॉक्टर इन सिम्टम्स को सुन के फिर वो अपना एक कैलकुलेटेड गेस करता है कि आप ये टेस्ट करा के ले आओ जिससे मुझे श्योर हो जाए कि हाँ यही डिजीज है, तब वो उसके रिगार्डिंग आपको कोई एक मेडिकेशन दे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे एमॉक्सिसिलिन एक कॉमन एंटीबायोटिक है, वो आपके बॉडी में इन्फेक्शंस के लिए होता है, किसी भी चोट के सूखने के लिए होता है। आप ऐसे आपका एक जैसे आप जिफी करके एक दवा है सेफिक्सिन, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो ये सब तो कॉमन ड्रग्स है, बट डॉक्टर इन्हीं सिम्टम्स को एनालाइज करके टेस्ट करा के कंफर्म करके ही फिर आपको अपनी दवा लिखता है कि ये आप खाओगे तो ये ठीक हो जाएगा आपका पर्टिकुलर डिजीज। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स।